Today we will discuss about alternating current, AC, alternating current. What is alternating current? The current which changes its amplitude and direction. Okay. Opposite to alternating current is our direct current, which is a smooth current. Okay. Now we will see why current is alternating. What is the reason that the amplitude and direction of current changes? Okay. So to study the origin of alternating current or alternating EMF, we will consider the motion of a coil in a uniform magnetic field. Okay. Suppose we have a coil like this. It has many turns. Okay. This is a coil. And this coil is kept in a magnetic field. Say, suppose this is the magnetic field. Now, if you rotate suppose this is magnetic field. If you rotate the coil in the magnetic field, when the coil is at right angle to the magnetic field, what will happen? Maximum number of lines of force will cut the plane of the coil. And from Faraday's law, we know that if flux is more, if number of lines cutting the plane of the coil is more, induced EMF will be more. Correct. So now, if we rotate the coil like this, the coil becomes parallel to the magnetic field. So what will happen? Here the area of the coil, the surface of the coil is parallel to the magnetic field. It means that magnetic lines of force will not cut the plane of the coil because magnetic lines of force are parallel to the coil. So the induced EMF because of electromagnetic induction will become zero. Then the coil rotates like this. Again it becomes maximum, and when it completes one rotation, suppose this is the coil which is at right angle, maximum lines, then it becomes parallel from maximum to zero. Again it will maximum, then again it will become zero. Okay. So this is the reason that the amplitude changes. The amplitude of induced EMF changes because when the coil is rotated, at that point of time the number of lines of force cutting the plane of the coil changes. Okay. So we can show this coil. So we will consider the rotation of a coil in a uniform magnetic field. Okay. Suppose n is number of turns in the coil. Okay. A is area of plane of the coil. B is the magnetic induction vector, that is the external magnetic field in which the coil is rotated. And when we are rotating the coil, we are rotating with certain angular velocity. Coil is rotating. So suppose the uniform angular velocity, the constant angular velocity of the coil is omega, with which it is rotated. Okay. So to represent this coil, we can represent this coil by the section of the coil. Okay. Say this is the magnetic field, and the coil is represented by its section, suppose like this. At any instant of time, if it makes an angle, suppose phi. So what is phi? So this is the coil. Now if this is the coil, then what is the direction of area? The direction of area is always perpendicular to the plane of the coil. So if this is the coil, if you draw a perpendicular to this coil, then this is called the direction of area. Correct? So suppose at any instant of time t, this area makes an angle, say phi. This makes an angle phi with the magnetic field. Okay. The angular velocity with which this coil is rotated is omega. So what will be the flux?
the flux equal to, we know that flux is defined as the dot product of magnetic field and the area of the coil, correct? Flux is, what is flux? Total number of lines of force passing through a unit area. So that is called the B dot A. This is the total number of lines of force passing through the surface is flux. So phi equal to B dot A, the dot product of two vectors. Okay, B is the magnetic field, A is the area. So flux will be equal to B dot product of two vectors. First vector, magnitude of the second vector, and angle between the two vectors, which is equal to cos of phi. This is the flux. Okay. Now, as per Faraday's law, the EMF induced is proportional to the number of turns and EMF induced is proportional to the rate of change of flux. तो अगर मुझे ये निकालना है कि इस कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, तो हम Faraday's laws of electromagnetic induction अप्लाई करेंगे, करेक्ट? सो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, एक माइनस साइन लेते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज opposing the cause, okay, as per Lenge's law. So minus number of turns in the coil into rate of change of flux. This is Faraday's law. The induced EMF in the coil, जैसे coil घूमेंगे तो coil में number of lines of force coil को काट करेगा, और जैसे coil घूम रहा तो number of lines of force change भी हो रहा, 90 डिग्री में मैक्सिमम, फिर 0 डिग्री में मिनिमम, इस बीच में चेंज तो हो रहा. तो अगर मैग्नेटिक लाइंस कट भी कर रहा और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स चेंज भी हो रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में. यानी कि कॉइल को अगर मैं ऐसे तार से जोड़ दूंगा, हाँ, तो इस कॉइल में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर अगर लगा दूंगा तो कॉइल में करंट फ्लो होगा, करेक्ट? तो हमको देखना है कि हाउ मच विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? सो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, और फ्लक्स हम कितना आया, बी ए कॉस फाई, बी ए कॉस फाई. ओके, तो अगर टी टाइम में कॉइल यहां से यहां आया, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो फाई कितना होगा? ओमेगा मतलब क्या होता है? ओमेगा मीन्स व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, एंगल मेड इन 1 सेकेंड. तो अगर मान लो कॉइल पहले ऐसे था, इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, व्हेन इट वाज नॉट रोटेटेड, at t equal to 0 coil was perpendicular to the direction of magnetic field. t टाइम में यहां पर आ गया, तो ये कितना हो गया, ओमेगा इंटू टी, ठीक है? तो ये हो गया 90 माइनस ओमेगा टी, बिकॉज ये 90 डिग्री है. अच्छा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री है, अगर ये 90 माइनस ओमेगा टी तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी होगा. देखो ये ओमेगा टी, क्यों ओमेगा टी? दिस इज द पोजिशन ऑफ द कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. तो ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी घूमेगा, करेक्ट? तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री, ये अगर ओमेगा टी है तो ये कितना होगा, 90 माइनस ओमेगा टी. फिर देखो ये दोनों मिलके 90 डिग्री है, इसमें से अगर ये 90 माइनस ओमेगा टी है तो ये कितना होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, तभी दोनों मिलके 90 होगा. तो ये जो फाई एंगल है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ. बट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जब टाइम टी था उस समय ये एंगल कितना था, ओमेगा टी. तो मैं इसमें लिख सकता हूँ माइनस एन, बी ये तो कांस्टेंट है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑल्सो नॉट चेंजिंग, सो बी इंटू ए इंटू डी ऑफ डी टी. कॉस फाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा इंटू टी, बिकॉज फाई इज ओमेगा टी. ओके, ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी हमको जानना पड़ेगा. तो हमको पता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ
cos mx with respect to x कितना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cos mx माइनस m sin mx, करेक्ट. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos mx. तो इसमें cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा क्या? एन बी ए. डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, करेक्ट. सो ये माइनस माइनस इधर आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. देखो जैसे जैसे टाइम बदलेगा ओमेगा टी बदलेगा, ओमेगा टी बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस बदलेगा, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट भी बदलेगा. तो ये जो इक्वेशन आया E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इससे हम आगे डिस्कस करते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग कॉइल which is rotating at a constant angular velocity equal to E equal to n a b omega sin omega t, correct. Now when the induced EMF is maximum, when sin this part is maximum, तो इसका maximum value sin theta का maximum value कितना होगा? +1 ना. So when sin omega t मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1. देन ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा इंटू 1, मतलब एन ए बी ओमेगा होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना हो सकता है? ये इसको मैं बोल सकता हूँ, दिस इज वी कैन से दिस एज ईपी. ईपी मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा? एन ए बी ओमेगा. कब होगा? जब कॉइल ओमेगा टी जब 90 डिग्री होगा, एकदम डायरेक्टली फील्ड को क्रॉस कर रहा है. फील्ड ऐसे है, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रहा है, ठीक है. तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? E इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईपी साइन ओमेगा टी, ठीक है. सो दिस इज आवर. ये क्यों अल्टरनेटिंग है? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे टाइम चेंज होगा साइन थीटा का वैल्यू +1 से 0 होगा, -1 होगा. साइन का वैल्यू 180 डिग्री में कितना होता है? साइन 0 इज 0, साइन 90 इज +1, साइन 180 इज 0, ठीक है. फिर 270 डिग्री -1 हो जाएगा. तो साइन का वैल्यू चेंज होगा तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन भी चेंज होगा. साइन का वैल्यू कितना होता है? +1 से -1 के बीच में वेरी करता है. तो अकॉर्डिंगली मेरा ईएमएफ भी वेरी करेगा, ठीक है. अगर कॉइल को मैंने सपोज ये कॉइल था, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ E. अगर मैं कॉइल को क्लोज कर दिया और गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो इस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा. तो अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो करंट कितना फ्लो होगा? I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R ना, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. तो E के जगह पे मैं लिख दूंगा ईपी साइन ओमेगा टी बाई R. तो करंट कितना हुआ? I इक्वल टू, देखो करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम देन करंट इज मैक्सिमम ना. सो व्हेन साइन ओमेगा टी इज +1, when sin ओमेगा टी इक्वल टू +1, तो उस समय करंट कितना होगा? करंट इक्वल टू ईपी बाई आर. इसको हम आईपी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है. तो मेरा करंट का इक्वेशन क्या हो गया? आई इक्वल टू ईपी बाई आर साइन ओमेगा टी. तो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कितना हो गया? I इक्वल टू ईपी बाई आर साइन ओमेगा टी.
EP by R कितना है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, IP sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3। तो IP इज लेस देन EP, क्यों? बिकॉज EP बाई R इज IP ना, ठीक है। देखो EP बाई R को हम IP बोला, तो मैग्नीट्यूड, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ना, IP का जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव है तो EP बाई R होगा, है ना, कम होगा। तो ये दोनों जो इक्वेशन है, एक हो गया E इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा t, एंड सेकेंड हो गया I इक्वल टू IP साइन ओमेगा t। दिस आर द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड, ये हो गया इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का EMF इक्वेशन। नाउ अगर क्यों अल्टरनेटिंग क्यों है? बिकॉज इक्वेशन में पता चल रहा है कि इक्वेशन में टाइम के साथ साथ ये इसका EMF बदलेगा ना। देखो I इज इक्वल टू दिस एंड E इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा t, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ प्लॉट करने से पता चलेगा व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग, ठीक है। चलो ओके, पहले मैं EMF, इधर हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा t, और इधर मैं EMF प्लॉट करता हूँ y एक्सिस में, x एक्सिस इज द टाइम एक्सिस ना। तो सपोज जब टाइम 0 था, इसको एक टेबल बना लेते, चलो E t इक्वल टू 0, E इक्वल टू, ठीक है। जब टाइम 0 था तो ओमेगा टी कितना होगा? 0 ना। तो टाइम अगर 0 है, ओमेगा टी 0, तो E इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो ये मेरा जब टाइम 0 तो EMF भी 0, ठीक है, ऐसे चालू हुआ, ओके, पैरेलल से चालू किया। अच्छा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू, सपोज पूरा घुमाने में t टाइम लगता है, ओके, तो व्हेन t इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, व्हेन t इज t by 4, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? देखो व्हेन t इज t by 4, साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन ऑफ ओमेगा मतलब कितना होगा? 2π/t, एंड टाइम को मैं t by 4 लिया, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, पूरा घूमने में अगर t टाइम लगता है तो 1/4 में t by 4, तो ये हो गया साइन π/2, साइन π/2 इज +1, ठीक है। तो अगर ये +1 हो जाएगा तो EMF कितना हो जाएगा? +EP, EMF इज +EP, ठीक है। व्हेन टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड मीन्स t by 2, व्हेन टाइम इज t by 2, तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t, इंटू टाइम कितना लिया मैंने? t by 2, साइन पाई, साइन पाई इज कितना? 0, करेक्ट, साइन 180 डिग्री इज 0, तो E इज इक्वल टू EP इंटू साइन 180 डिग्री मीन्स EP इंटू 0, तो EMF कितना हो गया मेरा? 0, ठीक है। व्हेन टाइम इज 3t by 4, ठीक है, 1/3, 3t by 4, 3t by 4, तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? साइन ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t इंटू 3t by 4, t cancel out, 2 cancel out, 3π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, -1, 270 डिग्री, करेक्ट। तो दिस इज -1, साइन ओमेगा टी इज -1, तो E इक्वल टू EP इंटू -1, E इक्वल टू -EP, ठीक है। नाउ व्हेन t इक्वल टू कंप्लीट रोटेट किया, एकदम t तक गया, व्हेन t इक्वल टू t,
टोटल टाइम पीरियड तब कितना हो जाएगा, ओमेगा टी कितना होगा, साइन ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी व्हेन टाइम इज टी, तो साइन 2 पाई, साइन even multiple and odd multiple of pi is 0, sin 360 degree is 0. So if it is 0, sin omega t is sin 2 pi equal to 0. तो EMF is equal to EP into 0, EMF equal to 0. तो देखो अगर मैं इसको EP मानता हूँ, ठीक है, ये हो गया EP पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पर माइनस EP भी ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, व्हेन टाइम इज 0, EMF इंड्यूस्ड इज 0, 0 0 हो गया ओरिजिन में। अच्छा, अगर मान लो इसको मैं t मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, t/2, ये हो जाएगा t/4, t/4, 2t/4, 3t/4। तो ये क्या मेरा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है, ओके। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4 लाइक दिस, ये कंटिन्यूअस चलेगा साइन का वैल्यू, पीरियोडिक फंक्शन है साइन। तो व्हेन टाइम इज t/4, व्हेन टाइम इज t/4, EMF इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस EP। व्हेन टाइम इज t/2, EMF इज 0। व्हेन टाइम इज 3t/4, देन EMF इज इक्वल टू माइनस EP। व्हेन टाइम इज t, देन EMF इज 0, ठीक है। अभी मैं अगर फ्री हैंड इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। इसके लिए इसको कहा जाता, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग EMF। इट्स चेंजेस इज मैग्नीट्यूड एंड इट्स चेंजेस इज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि कॉइल घूम रहा, EMF कभी मैक्सिमम हो रहा, कभी 0 हो रहा, कभी डायरेक्शन चेंज हो गया साइन के साथ, ठीक है। इसके लिए क्या, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग EMF। अगर मैं I इज इक्वल टू IP साइन ओमेगा टी पुट करूंगा तो सेम होगा, खाली IP का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। इसको मैं अगर IP बोलूंगा, बिकॉज ये भी साइन फंक्शन है, I इज इक्वल टू IP साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो इसको मान लो कि मैं प्लस IP बोलता हूँ, इसको माइनस IP बोलता हूँ, ठीक है। तो सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर करंट का भी प्लॉट करूंगा, तो when t is 0 it will be 0, then it will be plus IP, similar way, okay, 0 it will be minus IP, peak value of current, and finally 0। तो मैं जैसे ही ये सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाएगा इस तरह का, 0 में 0 होगा, दिस विल बिकम माइनस IP एंड दिस 0। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड, ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलेगा, करेक्ट। इसके लिए इसको क्या कहा जाता, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये इंड्यूस्ड EMF को क्या कहा जाता, ऑल्टरनेटिंग EMF, करेक्ट। अभी क्लियर हुआ ना कि ऑल्टरनेटिंग AC कैसे, ऑल्टरनेटिंग EMF कैसे बनता है, करेक्ट। देखो ये हो गया मेरा, और ये था मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट का। सो दिस इज माय alternating induced EMF in a rotating coil, okay, this is induced EMF and this is induced current, correct, clear हो गया।
नाउ अगर मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट को देखता हूँ तो इसका क्या हो रहा है ना, इसका डायरेक्शन एंड इसका एम्पलीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे किसी ने कहा कि व्हाट इज द एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू गेट द एवरेज। देखो ये जो दो इक्वेशन हमने अभी लिखा था ना, E इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू IP साइन ओमेगा टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, EMF इंड्यूस्ड EMF एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, इसको इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस EMF कहा जाता है। लेकिन अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज द एवरेज, क्योंकि एवरेज तो जो चीज वेरी हो रहा है उसका एवरेज से ही हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो एवरेज दो तरह से निकाला जाता है। एवरेज देखो, अगर मैं एवरेज ओवर हाफ साइकिल निकालूं 0 से T/2, अगर मैं एवरेज ओवर टोटल निकालने जाऊँ ना तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, सो इट विल बिकम 0। इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ मैं। Now we are interested in finding, चूंकि ये all the time change हो रहा है, उसका एवरेज एक्सप्रेस करना है मुझे, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। तो मैं, ठीक है, 0 T/2 T, तो अगर एवरेज निकालूं मैं 0 से लेकर T तक, तो हाफ साइकिल का जो एवरेज का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ साइकिल का जो आएगा नेगेटिव होगा। तो टोटल एवरेज अगर सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैं ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज ओवर हाफ साइकिल में निकल सकता हूँ, वो कैसे, सपोज ई एवरेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जितने हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। एडिंग मीन्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से T/2। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो EP साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक। एवरेज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर 0 से T/2 तक इंटीग्रेट किया तो नीचे में T/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज EMF। कैसे, चलो इसको करके देखते हैं। 2/T EP, तो चलो EP इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx कितना होता, कैलकुलस में देखा, इक्वल टू माइनस कॉस mx बाई m, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इज माइनस कॉस mx बाई m, जो भी कोफिशिएंट है x के साथ वो डिवाइड हो जाता है। सो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2EP/T, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा है वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2EP/T, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, पहले अपर लिमिट पुट करो टी के जगह पे, फिर माइनस कॉस टी के जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करना है, तो कॉस ओमेगा इंटू 0।
ये क्या हो गया, दिस विल गिव अस द एवरेज। अच्छा ओमेगा कितना होता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा और टाइम में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज 2π/t ना। तो यहाँ पर जो ओमेगा है इसको जगह पे लिख सकता हूँ 2π/t, ठीक है, एंड दिस इज cos 0। तो मेरा ये कितना हो गया, -2 × EP/ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t × t cos ऑफ 2π ना। तो cos का ग्राफ क्या कितना होता है, पाई एंड 2π, करेक्ट। तो cos 2π कितना होगा, cos 0 इज +1, पाई में -1, 2π में फिर से +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। अच्छा टाइम इज t/2 ना, यहाँ पर t/2 है ना, इसके लिए गलत हो रहा है, देखो टाइम के जगह पर t/2 पुट करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, cos पाई का कितना वैल्यू, -1 है ना। तो cos 180 डिग्री इज -1, सो दिस विल बिकम -1 minus cos 0, omega into 0 is cos 0, cos 0 is 1, so this is how much, -1 -2, ठीक है। अच्छा ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये टी के साथ कैंसिल हो गया, ये -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +2 EP/पाई, ये कितना हो जाएगा 2 × EP/पाई। ये क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, एवरेज ओवर है हाफ साइकिल, नॉट ओवर कंप्लीट साइकिल, एवरेज ओवर हाफ साइकिल। तो मेरा देखो अगर E = EP sin ωt, तो एवरेज वैल्यू कितना हो गया, 2 × पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाई पाई। सिमिलरली अगर करंट का एवरेज मुझे निकालना है कितना होगा, है ना, EP की जगह पे IP होगा, 2 × IP/पाई। So these are the values which gives average over half cycle. This is the average value of current over half cycle. This is average value of EMF over half cycle. तो क्या ये is it truly representing the average? No, average means it should be over complete cycle ना। complete cycle में average मैं ले नहीं पा रहा था, क्यों, because पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल को पूरा अगर ऐड करते तो प्लस जितना होगा उतना माइनस होगा, टोटल एल्जेब्रिक सम मेरा कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, इसलिए मैं टोटल सम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बट अगर मुझे एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू को पहले स्क्वायर कर देना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर कर देने से क्या होगा, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो नाउ we will discuss about average of induced EMF, average of induced current over a complete cycle। उसको क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर EMF और रूट मीन स्क्वायर करंट। ये क्या होता, हाउ टू डिफाइन रूट मीन स्क्वायर EMF। सबसे पहला काम क्या है, जितना भी तुम्हारा इंस्टेंटेनियस EMF है उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, चलो स्क्वायर कर देने से क्या होगा, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। अभी इसको ऐड करो, ऐड करने का मतलब क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐड करना है, कहां से कहां तक, कंप्लीट साइकिल 0 से T तक, तो 0 से T तक ऐड कर दिया। अच्छा चूंकि मैंने एवरेज ओवर T किया तो T से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि हमने स्क्वायर कर दिया तो जो भी एवरेज आएगा वो स्क्वायर में आएगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स आएगा, तो स्क्वायर हमको तो एवरेज चाहिए, तो स्क्वायर से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड ERMS। रूट मीन मतलब सबको स्क्वायर करके ऐड करके T से डिवाइड करना मीन,
और स्क्वायर किया हमने सभी को, स्क्वायर इसलिए करना पड़ा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। सो दिस इज हाउ रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ इज डिफाइंड। इसको अगर निकलना है वेरी इजीली निकल सकते हैं, स्क्वायर रूट को इस तरफ लेके जाओ, स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/t 0 to t स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, इसका ई के जगह पे पुट कर दो, इट विल बी पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हमको निकलना है अभी। ई पी इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर दो, ई पी स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर तुमको कैलकुलस आता है, कैलकुलस सीखे हो पहले, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, ये कैसे निकलता साइन स्क्वायर ओमेगा टी के वैल्यू? देखो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टी। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज कॉस 2 ओमेगा टी, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 2 को इस तरफ लेके आओ, तो पहले मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, स्क्वायर है ना, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बाई टी 0 to t। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या फॉर्म है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ठीक है, चलो इसको हम, इसका जरूरत नहीं है। वेरी इजी नाउ, हमको ई आर एम एस स्क्वायर निकालना है, करेक्ट। सो ई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू ई पी स्क्वायर बाई टी 1/2, 1/2 को बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 omega t dt, and the average is taken over complete one cycle, है ना, t time period। ठीक है, so this is ep square by 2t। now integration of dt is t minus integration of cos 2 omega t is sin 2 omega t by 2 omega 0 to t। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बाई 2t। चलो टाइम की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट किया, t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा इंटू टाइम की जगह पर t। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे 0 पुट करो, और साइन ऑफ t की जगह पे साइन 0 इज 0। ये मैंने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया। ओके, अच्छा, ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाई टी, टी टी कैंसिल, तो ये कितना हो गया, साइन 4 पाई, साइन एनी पाई if it is odd multiple or even multiple of pi, sin any multiple of pi is 0। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, इसके कोई लेना देना नहीं है, तो बचा क्या ये, सो ई पी स्क्वायर बाई 2t इंटू टी। ठीक है, टी टी कैंसिल आउट, सो इट इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर बाई 2। तो मेरा क्या हो गया, ई आर एम एस स्क्वायर, देखो ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर
EMF इक्वल टू EP स्क्वायर बाई 2। तो ERMS कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच EP स्क्वायर बाई 2, दैट इज EP बाई, ठीक है। सो द रूट मीन स्क्वायर EMF which is more perfect than half cycle average, correct? So this value is ERMS equal to कितना हो गया? EP by root 2। तो अगर EMF का रूट मीन स्क्वायर EP by root 2 होगा, करंट का कितना होगा? IRMS कितना होगा? IP by root 2, correct? So that's all about today's discussion. So what we learned today, let us see, let us revise it through our notes. So we discussed about alternating current, alternating EMF, okay? How it is generated, why it is called alternating, why the amplitude varies. So we discussed about the induced EMF in a rotating coil. The coil is rotated with a constant angular velocity omega. So when T equal to 0, then the current was 0 because area is parallel to the direction of magnetic field, okay? So we derived this equation that when a coil is rotated, then EMF is induced in the coil, and this induced EMF is given by the Faraday's laws of electromagnetic induction, which is Na B omega sin omega t, okay? As with respect to time, omega t changes, so the EMF changes, and if the coil is connected, okay, then we will get a current. The current is equal to how much? EMF divided by the resistance of this coil, correct? So E divided by R is current. So we got the induced current in the coil. This is simple. Then we plot एक एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को रखा, वाई एक्सिस में उसका एम्पलीट्यूड को रखा। तो क्या हुआ, जीरो से ईपी तक गया, फिर जीरो हुआ, फिर माइनस ईपी तक गया, फिर जीरो हुआ, ठीक है। करंट का भी वही होगा, खाली एम्पलीट्यूड आईपी इज ईपी बाई आर, तो थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड कम रख के उसको भी प्लॉट किया। सो वी गॉट, दिस इज हाउ साइनोसॉइडियल इन नेचर, है ना। इसके लिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहा जाता है, ओके। इट वेरीज विद द साइन। फिर हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल निकाला। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ा, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर के मीनिंग पता चला, पहले हम लोग को स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला। मीन मतलब इंटीग्रेट करना पड़ा, तो टी से डिवाइड करना पड़ा। चूंकि हमने स्क्वायर करके मीन निकाला था, इसके लिए स्क्वायर तो चलेगा नहीं, तो रूट, तो इसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ा। इसके लिए इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, सो then what is the physical significance of root mean square value? So physical significance क्या है, रूट मीन स्क्वायर से अगर मेरा सपोज एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ओके, अगर उतना ही ईएमएफ का मुझे एक डीसी सोर्स चाहिए, तो उसका जो एवरेज आ रहा ना, उतना ईएमएफ का मुझे वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब अगर मुझे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स का रिप्लेसमेंट करना है, तो वो उतना ही उसका जो एवरेज वैल्यू आएगा उससे रिप्लेसमेंट करना है। सो व्हाट इज रिटन हियर, जस्ट रीड इट। The AC source is connected across a resistance R and let H joules of heat is produced per second. When a DC source is connected across the same resistance, a constant current, say I, flow through the resistance and let again H joules of heat is produced per second. Then this direct value of current is said to be root mean square value of current of the given alternating current. इसका मतलब ये है कि ये जो एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स जितना हीट प्रोड्यूस करता है,
कौन सा डीसी, कौन सा डायरेक्ट करंट का वोल्टेज सोर्स मैं कनेक्ट करूं कि उतना ही हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो एसी सोर्स का अगर डीसी इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हेल्प करता है, ठीक है, कि ये दिस शुड बी ईपी बाई रूट शुड बी द voltage of the DC source. Okay, so this is the physical significance of root mean square current. Then we calculated also the average value over a half cycle 0 से t. अच्छा, ये जो दोनों का रेशियो है ना, the ratio of this है ना, ये AC and देखो फॉर्म फैक्टर किसे कहा जाता है, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू कितना होगा, देखो इधर हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस है ना बाय ई एवरेज, इसको क्या कहा जाता है, फॉर्म फैक्टर। तो ई आरएमएस कितना हो गया, ईपी बाई रूट टू एंड ई एवरेज इज 2 ईपी बाई पाई, ईपी ईपी कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो गया, पाई बाई, ये पाई हो जाएगा, ये रूट टू ईपी बाई, अच्छा नहीं ईपी बाई रूट टू ना, एक मिनट, ई आर एम एस इज ईपी बाई रूट टू एंड ई एवरेज इज इक्वल टू टू ईपी बाई पाई, करेक्ट। तो ये हो गया, ऊपर में पाई चले गया तो 2√2 हो गया। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 3.142, 2 इंटू 1.414। सो इसको मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा, इसको क्या कहा जाता है, फॉर्म फैक्टर। सेम थिंग होगा, अगर ई आई आर एम एस को आई एवरेज से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, पाई बाई 2√2 आएगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन।